Hello everyone, we are starting with exercise 7.1, question number 1 of it, and the chapter name is integrals. And this topic is from class 12, and we have to find the integral of the following function, which is sin 2x. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंटीग्रल निकालना है sin 2x का. इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि sin x का इंटीग्रल होता क्या है. इट इज़ माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, sin 2x है. तो सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे कॉस के फंक्शन में, इट विल बी माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, सो इट विल बी इन डिवीजन. और कह सकते हो कि 2x का क्या होता है, 2 होता है. देन प्लस c. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says find an antiderivative of the following function by the method of inspection. Same question is as the first one, और यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, cos 3x का इंटीग्रल निकालो. तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज़ sin x प्लस कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, पहले तो आप लिख लो इसको cos 3x dx. तो cos का होता है sin 3x एज इट इज़ आएगा, और 3x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो आपका डिवीजन में आ जाएगा 3 प्लस अ कांस्टेंट. तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x. नाउ मूविंग टू द थर्ड वन. Question number 3 says find the integral of the following function that is e2x. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है आपको कि e2x का आपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फंक्शन है ex, और ex का इंटीग्रल ex ही रहता है. बट यहाँ पे क्या फंक्शन है, e की पावर 2x. तो आपने इंटीग्रल निकालना है ना e टू द पावर 2x का. तो आप क्या करोगे, पहले तो सेम फंक्शन लिखोगे, और फिर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, इट इज़ 2 प्लस अ कांस्टेंट. So yes, this is the integral or the antiderivative of e2x. Now moving to the next one. Let's start with the fourth one. It says ax plus b whole square and we have to find the integral of it. तो इंटीग्रल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ax plus b का पावर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब पावर विल बी added to it. It will give you 3. It will be ax. Let me just write the function first, then I will take the integral of it. So what you can do is you can open the bracket or you can do it directly. जैसे भी आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो. तो सबसे पहले you can see कि ax plus b whole square है, तो power will be, you have to add 1 to the power, so it will be 3. अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ax आपका क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आपको इंटीग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू dx. तो ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, a, और पावर कितनी आई थी, 3. सो यस, इट विल बी 1/3a and in bracket ax plus b to the power 3. Now we'll be moving to the fifth one. Let's start with the fifth question, and again we have to find the integral of it. The function is sin 2x minus 4 e to the power 3x. So what is the integral of sin 2x? It is cos 2x, and minus there will be, and what is the coefficient of x? It is 2, so it will be in division. Now we'll find the integral of the second part, which is 4 e to the power 3x. So 4 will be as it is because it is a constant. Then e to the power 3x will be there, क्योंकि integral of e to the power x is same. So ये भी same रहेगा, but you can see that there is a coefficient of x here which is 3 and it will be in division. And then you can, what do you have to put next is plus c, because we are finding the integral of the function. So yes, this is the answer for the fifth one. Now we'll be moving to sixth question. Let's find the following integrals, which is starting from sixth question. It says 4 e to the power 3x plus 1, integral of 4 into e to the power 3x plus 1. Now we'll find the integral of this part. It will be 4 as it is, e to the power 3x as it is, because we know integral of ex is ex only. So it will be as it is, and then you have to divide it with 3. What is the integration of 1? It will be the constant, which is x. So yes, x is the integral of 1. So it will give you the last term as c. A constant will be added to it. So yes, this is the integral to question number 6. Now we'll be moving to
the seventh one. Let's start with question number 7. It says integral of x square 1 minus 1 over x square. So what I was thinking to do is I can multiply x square with the first term and then x square with the second term first of all. So first term will be x square only, second term will be x square over x square, and then bracket close dx. X square and x square can be cancelled, it will give you 1. So you have integration over x square minus 1 dx. Now I can take the integral of x square and minus 1. So what is the integral of x square? We know that integration over x and dx is x to पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो अगर आपको कभी भी पावर दी होती है, जैसे एक्स एन दिया हुआ है मेरे को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि आप पावर में 1 ऐड कर दो और जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 3. अब माइनस 1 का क्या होगा, माइनस 1 विल बी x only and plus a constant. Yes, this is the answer for the 7th one. Now we'll be moving to 8th question of it. Let's start with the 8th one. It is ax square plus bx plus c. तो इंटीग्रल हमें करना है तीनों के ऊपर. तो सबके ऊपर हम पहले इंटीग्रल पुट कर लेते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ईच पार्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले यू कैन सी ए इज़ अ कांस्टेंट, तो आई विल कीप इट आउट. और सेकंड टर्म में यू कैन सी बी इज़ अ कांस्टेंट, तो आई विल कीप इट आउट. देन सी भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचा क्या 1 थर्ड टर्म में. अब ए तो एज इट इज़ रहेगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किस फॉर्मूला से करेंगे, एक्स एन डी एक्स वाले से. और पावर में क्या चेंज आता है, +1 हो जाता है और डिवाइडेड बाय द सेम पावर. तो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 + 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3. बी एज इट इज़ रहेगा, एक्स की पावर अभी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2. सी है एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इट इज़ एक्स ओनली. सो इट विल गिव यू थर्ड वन एज सी एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट इन द एंड. So yes, this is the answer for the 8th one. Now we'll be moving to 9th question. Let's start with the 9th one. It says integration of 2x square plus ex. तो 2x square में आपको दिख रहा है कि 2 आपका कॉमन है, तो you can take it out. और सेकेंड इंटीग्रल क्या है हमारा ex dx. तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है. एक्स एन डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो आपका क्या हो जाएगा इस केस में, x की पावर 3, क्योंकि 1 नीड्स टू बी एडेड टू 2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय द सेम पावर विच यू हैव. और इंटीग्रल ओवर ex क्या होता है, इट इज़ ex ओनली प्लस अ कांस्टेंट. बस आपका इंटीग्रेशन आ गया विच इज़ 2/3 x क्यूब प्लस ex प्लस कांस्टेंट. नाउ विल बी मूविंग टू द 10th वन. Let's start with the 10th one. It is integral over root x minus 1 over root x whole square. So what you can do is, first of all, use the identity to reduce the value. So which identity we have to use is a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. तो a की वैल्यू इस केस में क्या है, रूट x है, रूट x का स्क्वायर. b की वैल्यू इसमें क्या है, 1/√x होल स्क्वायर माइनस 2ab. रूट एक्स, बी की वैल्यू क्या है 1/√x. एक्स एंड रूट एक्स विल बी कैंसल्ड, और फर्स्ट वाले में रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, सेकंड वाले में 1x आ जाएगा, थर्ड वाले में 2 आ जाएगा. तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं आफ्टर ओपनिंग दिस स्क्वायर वैल्यू, और इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप इंटीग्रल ओवर x निकालोगे, फिर 1/x निकालोगे, फिर लास्ट में 2dx निकालोगे. इंटीग्रल ओवर x क्या होगा आपका, x स्क्वायर ओवर 2, वही वाला इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं जो लास्ट में यूज़ किया था, लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था. और dx ओवर x क्या होता है आपका, इंटीग्रल ओवर dx ओवर x, इट इज़ log x. तो आपका सेकंड का क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस, और 2 तो बाहर ही आएगा आपका बिकॉज इट विल बी सेम, देयर वोंट बी एनी इंटीग्रेशन ओवर 2, और हमारे पास इंटीग्रल ओवर dx क्या होता है, द सेम वैल्यू विच इज़ x, और लास्ट में प्लस अ कांस्टेंट. सो येस, दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ 10th one. Now we'll be moving to 11th one. Let's start with the 11th one. We have x cube plus 5x square minus 4
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले सेपरेट करेंगे टर्म्स को। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू जो है एक्स क्यूब है और उसके नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या है, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लास्ट में आपके पास क्या है, 4/x स्क्वायर dx। तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर विल गिव यू x, then second will be x square and x square can be cancelled, it will give you 5. Last one is 4x square dx। तो x का इंटीग्रल तो हमें पता है, बहुत सिंपल है, क्या होगा, x टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब अगर कोई पावर नहीं है तो x की पावर 1 है, तो 1 + 1 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इंटीग्रल ओवर 5 क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल ओवर 5 तो एज इट इज़ रहता है, इंटीग्रल ओवर dx बचा, dx की वैल्यू क्या होगी, x। अब यहाँ पे लास्ट वाले में अगर हम देखें तो आई कैन टेक एक्स स्क्वायर टू द अपर साइड। एक्स स्क्वायर को अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स टू द पावर -2, क्योंकि हमारी पावर नेगेटिव हो जाती है। अब 4 तो एज इट इज़ रहना ही है, लेकिन x की पावर -2 में क्या चेंज आएगा, +1 हो जाएगा। तो -2 + 1 इज़ -1, तो x की पावर -1 होगी और डिवीजन में क्या आएगा, -1 + c। तो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज आ सकता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 विल बी एज इट इज़, 5x विल बी एज इट इज़, -1 कितना हो जाएगा आपका, +4 टू द पावर x टू द पावर -1 प्लस अ कांस्टेंट। सो यस, दिस इज द आंसर फॉर द 11th वन। नेक्स्ट वन विच इज़ 12th क्वेश्चन। Let's start with question number 12. It says x³ + 3x + 4 in division √x। तो आपके पास सबसे पहले पावर क्या हो जाएगी, x³ ओवर x टू द पावर हाफ, रूट को हम क्या लिखते हैं, x टू द पावर हाफ, 3x ओवर x टू द पावर हाफ, 4 ओवर x टू द पावर हाफ dx। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हर टर्म को। x³ मतलब हो गया 3 और नीचे क्या है हमारे पास, हाफ है, तो -½ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, इट विल गिव यू 6 - 1 विच इज़ x टू द पावर 5/2। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, तो हमारा नीचे है हाफ, 1 - हाफ इज़ हाफ ओनली, सो इट विल गिव यू 3x टू द पावर हाफ इंटीग्रल। लास्ट में आपके पास 4 है और x की पावर क्या हो जाएगी, -½ क्योंकि ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में उसको सॉल्व करवाने के लिए। अब हमारे फर्स्ट वैल्यू क्या है, x टू द पावर 5/2, तो हमें पता है कि हमें पावर में 1 ऐड करना है। तो 5/2 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7/2, क्योंकि एलसीएम क्या होगा 2, 5 + 2 विल गिव यू 7/2, और 7/2 नीचे भी। सेकेंड टर्म में आपके पास क्या होगा, 3, x की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और नीचे भी आपके पास डिवीजन में क्या आएगा 3/2। नेक्स्ट में 4, x की पावर -½ थी ना, -½ में +1 करोगे तो हाफ आएगी, और नीचे भी हाफ आ जाएगा। अब पहली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, प्लस अ कांस्टेंट, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे ही रहेगा, x की पावर 7/2। सेकेंड में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो आपकी x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। नेक्स्ट में आपका 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और x की पावर क्या होगी हाफ प्लस अ कांस्टेंट। सो यस, दिस इज़ द आंसर फॉर 12th वन। विल बी मूविंग टू 13th क्वेश्चन। Let's start with the 13th question. It is x³ - x² + x - 1 divided by x - 1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिवीजन है x - 1 के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को क्या लगता है कि न्यूमरेटर को हमें फैक्टराइज कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आई कैन फैक्टराइज इट। तो सबसे पहले आई विल फैक्टराइज द न्यूमरेटर सो दैट आई कैन सी व्हाट फैक्टर्स इट पोजेस। फर्स्ट 2 में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x का स्क्वायर, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से बचेगा क्या, x - 1। सेकेंड 2 वैल्यूज़ में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, बट आई कैन टेक 1 कॉमन, तो x - 1। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके पास, x² + 1 और x - 1। ऐसे ही करते थे ना, 10th क्लास में सीखा है आपने फैक्टराइजेशन करना। सो फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे, x² + 1 x - 1 dx ओवर x - 1। x - 1 से x - 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन किसका बचा, x² + 1 dx का। तो x² का इंटीग्रल करो, 1 का इंटीग्रल करो, क्या आएगा देखते हैं। x² का इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगी पावर,
over 3 plus integration of 1 क्या होता है x plus a constant. So yes, this is the answer for the 13th one. Moving to 14th question. Let's start with the 14th one. So इस केस में आपको क्या करना है कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म से सेकंड वाले को सेकंड से. अब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपैंडिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे. सो फर्स्ट वैल्यू को अगर आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स ही आएगा. सेकेंड वैल्यू को अगर आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या है, एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो. एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर हाफ है, तो ऐड हो जाएगी. तो एक्स की पावर फाइनली कितनी आ गई, 3/2. एक्स टू द पावर 3/2 dx. अब पहली वैल्यू आपकी एक्स टू द पावर हाफ है ना, तो हाफ को आप कैसे लिख सकते हो वो देखो, हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2. सेकेंड को आप कैसे लिख सकते हो, इट इज़ एक्स टू द पावर 3/2. 3/2 का आपका पावर क्या हो जाएगी, 5/2 और डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस अ कांस्टेंट. तो आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस अ कांस्टेंट. So yes, this is the answer for the 14th one. Moving to 15th question. Let's start with the 15th question. It says root x in bracket 3x square plus 2x plus 3. So again what you have to do is you have to expand the bracket. First term को first से, second से, third से. तो root x का मतलब तो हमें पता ही है क्या है, x to the power half. तो अगर आप x to the power 2 को x to the power half से मल्टीप्लाई करोगे, so you have to add 2.5. That means it will give you x to the power 5/2. Second will be x to the 2 will be as it is, x to the power will be 1 into x to the power half, so it will give you 3/2. सेकेंड में, थर्ड में आपका क्या होगा, 3 से रूट एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वो एज इट इज़ आएगा. अब x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करते हैं. x टू 3 भी है यहाँ पे, आई एम सॉरी, फर्स्ट के साथ 3 भी लगेगा, वो भी ज़रूर लिख लेना. और 3 के साथ 3 कांस्टेंट रहना है. x की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 5/2 प्लस 1, इट विल गिव यू 7/2. 7/2 आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. 2 एज इट इज़, x की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2 एज इट इज़. 3 के साथ क्या लगा हुआ है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x टू द पावर हाफ प्लस 1 आप करोगे तो क्या आएगा, 3/2 एंड डिनोमिनेटर प्लस अ कांस्टेंट. अब आपके पास क्या होगा, इस केस में फर्स्ट टर्म में 2 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा. x की पावर 7/2, 7 नीचे है. सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस अ कांस्टेंट. बस सिंप्लीफाई हो गया और ये आपका सॉल्यूशन है 15th क्वेश्चन के लिए. लेट्स स्टार्ट विद द 16th वन. इट इज़ 2x माइनस 3 cos x प्लस ex. तो सबसे पहले हम इंटीग्रल निकालेंगे 2x का. तो 2x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, इट विल बी 2x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2. सेकेंड आपका इंटीग्रल किसका निकलना है, 3 cos x का. तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x. 3 तो आना ही आना है, 3 sin x हो जाएगा. प्लस ex का इंटीग्रल क्या होता है, वो तो ex ही होता है, तो वो ex एज इट इज़ प्लस अ कांस्टेंट. सो दिस इज़ योर आंसर फॉर 16th one. We'll be starting with the 17th one. Let's start with 17th one. It is 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx. तो आपको इंटीग्रल किसका निकालना है, सबसे पहले तो 2x स्क्वायर का. तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, 2 और x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3. नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 3 sin x. 3 तो आना ही आना है, और sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट में आपके पास क्या है, इंटीग्रल ओवर 5 रूट एक्स dx. तो 5 तो आना ही आना है, x की पावर हाफ है और पावर में क्या चेंज आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस अ कांस्टेंट. तो आपके पहली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड वैल्यू 3 cos x रहेगी, और थर्ड वैल्यू 2 ऊपर चला जाएगा 5 के साथ, 10 हो जाएगा. x 3 टू पावर 2 3 plus a constant. So yes, this is the answer for the 17th one.
लेट्स स्टार्ट विद द 18th वन, इंटीग्रल ओवर sec x प्लस tan x dx। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x से sec x मल्टीप्लाई करोगे, sec x से tan x मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका सीकेंट स्क्वायर x से हो जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू, तो सेकेंड क्या हो जाएगी सीकेंट x tan x dx। सो सीकेंट स्क्वायर x का तो डायरेक्ट होता है आंसर, और वो है tan x। पहले वाली टर्म का इंटीग्रल क्या होगा tan x, और दूसरे वाले का इंटीग्रल का क्या होगा सीकेंड x डॉट tan x का होता है सीकेंड x। सो यस, दिस इज द आंसर फॉर 18th वन। विल बी मूविंग टू 19th क्वेश्चन। Start with the 19th one. So you have secant square x over cos x square x. So I can see कि हम इसको reduce कर सकते हैं। secant square x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 cos square x, और cos x square x को आप कैसे लिख सकते हो, 1 over sin square x dx। तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी फाइनल, sin square x ऊपर चला जाएगा, so it will give you sin square x over cos square x। अब sin over cos क्या होता है, tan square x dx। अब tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो आई कैन राइट tan स्क्वायर एक्स एज 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपने 10th क्लास में सीखा था कि आइडेंटिटी होती है, tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स के। अब 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, लेकिन सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज़, सॉरी आई नीड टू करेक्ट इट, आई नीड टू राइट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, then I will take the integral over it, secant square x minus 1। तो secant square x का इंटीग्रल क्या है, it is tan x, वो तो लिखना ही है हमें। फिर उसके बाद 1 का इंटीग्रल is x, और लास्ट में c। This is the answer for the 19th one। We'll be moving to 20th one। Let's start with the 20th question. We have to find the integral again. So first I can see is, what I can do is I can separate the terms। So first हो जाएगा आपका 2 ओवर cos स्क्वायर एक्स, सेकेंड हो जाएगा 3 sin x ओवर cos स्क्वायर एक्स dx। तो cos स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, इट इज़ सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रल sin x ओवर cos x, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज cos x इंटू cos x। तो sin x ओवर cos x क्या हो जाएगा, tan x, और 1 ओवर cos x क्या हो जाएगा, इट विल बी secant x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आपने इंटीग्रल लेना है secant स्क्वायर x का, 2 तो एज इट इज़ आएगा, secant स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x, 3 एज इट इज़ आएगा, tan x secant x का इंटीग्रल क्या होता है secant x, सो secant x आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में c। We are done with the 20th one. We'll be starting with 21st question. Let's start with 21st question. It says antiderivative of root x plus 1 root x। antiderivative का मतलब कुछ नहीं बट इंटीग्रेशन ही होता है, तो इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं दोनों टर्म्स का। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x टू द पावर हाफ। 1 बाय रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर हाफ है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगी x की पावर माइनस हाफ dx। x की पावर हाफ का इंटीग्रल कर लेते हैं, x की पावर हाफ में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3/2, और 3/2 नीचे भी। अब x की पावर माइनस हाफ में +1 ऐड करोगे तो इट विल गिव यू हाफ, और नीचे भी हाफ। 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x की पावर हाफ प्लस अ कांस्टेंट। So yes, this is the answer for 21st, and right option out of this is C part. It is, no, it is not C. Yeah, it is C only. So C is the correct option for question number 21. We'll be moving to next one. Let's see what we have. Let's start with question number 22. It says if d over dx fx is 4x cube minus 3 over x to the power 4 such that f in bracket 2 gives you 0, then fx is, तो हमें fx की वैल्यू निकालनी है। तो fx की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। हमें ना इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है और fx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इंटीग्रल ओवर 4x क्यूब माइनस 3 x टू द पावर 4,
ये निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा 4, x की पावर कितनी हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, x की पावर 4 नीचे है ना, ऊपर जाके क्या हो जाते हैं x की पावर -4। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल ले लेंगे। इंटीग्रल में क्या आएगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय -3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया x टू द पावर 4 और साथ में 1/x³, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा और x की पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस सा कांस्टेंट। लेकिन हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो पता नहीं है, fx तो हमारा आ गया है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, वही हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, क्योंकि ये दिया हुआ है ना हमें कि f इन ब्रैकेट 2 इक्वल्स 0, तो इसका मतलब अगर आप x की जगह 2 डालोगे तो फंक्शन आपका किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 2 पुट करके देखते हैं, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 3 प्लस द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 1/8 प्लस द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 हो जाएगा एलसीएम, और 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 विल गिव यू 128 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड राइट साइड लेकर जाओगे ये वाली वैल्यू तो -129/8, तो सी की जगह अगर आप -129/8 रखोगे तो आपको आपका fx मिल जाएगा। सो येस, आई कैन सी माई आंसर हेयर विच इज़ ऑप्शन ए। करेक्ट इज ऑप्शन ए हेयर, x to the power 4 plus 1/x³ minus 129/8. Now we'll be moving to the next exercise, which is exercise 7.2 for you. Thank you for watching this one. I hope you liked the exercise 7.1, and yes, do like, share and subscribe with your friends. Thank you.